friends. How are you? I hope all you are good. So, in our previous lecture, we discussed about the linear differential equation of the type dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are the functions of x. Now, in this lecture, we are going to discuss the another form of linear differential equation, that is dx upon dy plus px equal to q, and here p and q are the functions of y. So what happens, your dependent variable and independent variable are changed. X is replaced by y and y is replaced by x. So let's discuss with one example. Okay, so I am just going to write one question. So question 1, solve the differential equation, and the equation is y log of y equals to x minus log y into dy upon dx. So, and this is minus. Okay, so now the question arises, or this question can also be written in this form, or y log y dx plus x minus log y into dy is equal to 0. Any form may be there. Okay, no issue. Now the question arises, solution. Now the question arises, sir, which method we will use in our question? How we will judge? Either we have to use this method 1 or this method 2. Very simple thing is that check which variable has the large number of terms. So if you check you have a large number of terms of y, that means previous equation you see maximum number of terms are in the form of x, but in this given question the maximum number of terms are in the form of y. So what happened, once you check that which variable has the maximum number of functions, accordingly you have to select. Now we are going to use the second method, because in this you have a one dependent variable as in the form of dx and another variable in the form of x. You see, only one dx is here and one x is here. So what happened, in this way you can easily judge which method we have to use. So remember, this is one of the most important part in this question. So given y log y into dx plus x minus log y into dy is equal to 0, equation number 1. Simplify it. This implies that dx upon dy is equal to, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो अपने हिसाब से कर लीजिए, माइनस एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन वाई लॉग वाई. तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो dx अपॉन dy is equal to minus x upon y log y, and minus minus plus log y upon y log y. So what happened, your this term log y will cancel. So what we have this equation in this form, dx upon dy plus 1 upon y log y into x is equal to 1 upon y, equation number 2. Now next one, come on next page.
equation 2 is a linear equation of the form. So what is the form? Dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are the function of x. Okay, so compare equation 2 with above equation. Above equation means this equation. Okay, so we have छूट गया above equation, comma, so we have p equals 1 upon y log y and q is equal to 1 upon y. So find integrating factor. Integrating factor is equal to e to the power integration of p, dx नहीं होगा यहाँ पर dy होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, is equal to integration of integration 1 upon y log y dy. This gives you a integration of e की power 1 upon y को अलग छोड़ दो into 1 upon log y dy. तो क्या करेंगे, let log y is equal to z या t, कुछ भी मान लो t. This implies that 1 upon y dy is equal to dt. So integrating factor is integration of dt upon t. So integrating factor equals e to power log t, that is equal to t. And what is the value of t? T means log y. So what is your value? So you see the integrating factor is, that is integrating factor is equal to log y. Step 2. What is the step 2? Complete solution. Complete solution is given by the equation. अब हमने क्या लिखना, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x. तो ये जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो न्यूमरेटर में होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस कांस्टेंट c. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू log y is equal to integration of 1 upon y integrating factor log y into dy plus constant c. That is, when you solve this one, you will get your answer. This implies that x into log y is equal to, again assume the log, this is as t or z, so you have the value z. Let assume करते, let log y is equal to z. तो 1 upon y dy is equal to dz. तो आपके पास क्या हो जाएगा, z into dz plus c. So we have the answer. This implies that x log y is equal to z square by 2 plus constant c. Now put the value of z. This implies that x log y is equal to, z means log z upon 2 log z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c. log z से
log y से, सॉरी बेटा, दिस इज y not z. So now divide by log y, तो x is equal to 1 by 2 log y plus c into log x whole inverse. So this is your final answer. So in this way you can solve the equation by converting dx upon dy. So we are going to solve one more question of the same type. Okay, so question number 2. Question number 2. Solve the differential equation is 1 plus y square into dx is equal to tan inverse y minus x into dy. आप चेक करो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका एक dx है और एक x है, बाकी सब कुछ y है। तो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म बनेगी, इस क्वेश्चन में बनेगी dy अपॉन नो, इस क्वेश्चन में फॉर्म बनेगी dx अपॉन dy प्लस px is equal to q. Okay, so now start the solution. This is only for a hint, this is not the part of question. Okay, so given, always we are writing this term, given 1 plus y square into dx is equal to tan inverse y minus x into dy. So this implies that dx upon dy is equal to tan inverse y upon 1 plus y square, and in between that there is a minus x upon 1 plus y square. So arrange in the your standard form. So plus 1 upon 1 plus y square into x is equal to tan inverse y upon 1 plus y square. So now this is your equation number 2, this is your equation number 1. Now find the integrating factor. So if is equal to e to the power integration of 1 upon 1 plus y square dy is equal to integration is equal to e to the power, ये किसका इंटीग्रेशन है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y. So integrate, I now you know that. So complete solution is x into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dy प्लस कांस्टेंट c. चलो तो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q, कितना था, चेक इट, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा इंटू e की पावर tan इनवर्स y dy plus constant c. So now let tan inverse y is equal to t, इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt. तो हमारे पास क्या है, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. जिस पार्ट को इंटीग्रेट करना है
तो दिस implies that x into e to the power tan inverse y is equal to, देखो ये tan इनवर्स y को तो हो जाएगा t, ये हो जाएगा e की पावर t, और ये टर्म और ये टर्म मिलके बन जाएगा dt प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पर फर्स्ट आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, दिस implies that x into e की पावर tan inverse y is equal to first function into integration of second function minus integration d upon dt of first function into integration of second function और into इस पूरे का एक बार फिर इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c। तो दिस implies that x into e की पावर tan inverse y is equal to t e की पावर t माइनस इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक बार करो चाहे 10 बार करो, you will get the same answer to e to the power t plus constant c. Now replace the value of t. So this implies that x into e की power tan inverse y is equal to tan inverse y into e की power tan inverse y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। हर जगह से tan इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y पावर, ये पूरा टर्म ये वाला मैं लिख रहा हूँ, आई शो यू दिस दिस एंड दिस विल कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 एंड प्लस c अपॉन tan e टू पावर tan इनवर्स y। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस implies that x इक्वल्स tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। दिस इज योर फाइनल आंसर। और हम सबको पता है कि c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। Now we are going to discuss one another question and that is very different from all these things. क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन का ही है, लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, बट अप्रोच डिफरेंट आएगी। तो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। What is question number 3? If dy upon dx plus 2y tan x is equal to sin x and y is equal to 0 for x is equal to pi by 3 sh, then so that maximum value of y is 1 by 8. Okay, this is the question. तो लीनियर इक्वेशन का तो यूज होना ही होना है, बट यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन हिडन है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल गिवन dy अपॉन dx प्लस 2 tan x into y is equal to sin x, इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसी इक्वेशन है, विच इज द लीनियर इक्वेशन, विच इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है, फॉर्म है आपका dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। तो हम सबको इंटीग्रेशन मालूम है, तो क्या जाएगा e की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, ये आता है e की पावर 2, ये आएगा tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, तो e की पावर log sec स्क्वायर x, ये पावर मिले गए, तो आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, अब हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन is y into integrating factor is equal to q into integrating factor plus into dx plus constant c. So this implies that y into sec square x is equal to q means q चेक कर लेते, sin x दिया था वैसे, sin x into sec स्क्वायर x dx प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो डायरेक्ट तो इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, अब इसको ब्रेक करेंगे हम, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एक ले लो कॉस यहाँ पर, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आप याद करो सेक एक्स tan x, इसका इंटीग्रेशन था तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब सेक एक्स से डिवाइड कर देते हैं, जब सेक एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे कर देते हैं, सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, बचेगा 1 अपॉन सेक, अच्छा चलो लिख देते हैं, 1 अपॉन सेक प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। और भी इसको आपको अच्छे से लिखना है तो नेक्स्ट रो पे चलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos x इन ब्रैकेट 1 प्लस सी cos x। हमें cos x की वैल्यू पता चल जाए, ये तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन अभी कंडीशन दी है, उस कंडीशन को अप्लाई करना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी लिखना हो लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दी है कोई कंडीशन दी है y इज इक्वल टू 0 कब, फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 3, पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस सी कॉस पाई बाई 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट इधर उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस सी कॉस पाई बाई 3, 1 प्लस सी कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है,
ये आ जाएगा c इंटू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू -1. दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -2. हमारे पास c की वैल्यू निकल आई. पुटिंग this value in equation 2 we get, हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख लेते हैं. हमें मिलेगा this implies that y is equal to cos x ब्रैकेट ओपन कर दो -2 cos स्क्वायर x. अब सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन हमें प्रूव करना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2. तो हमें cos x की वैल्यू चाहिए. तो क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंस है माइनस साइन x -2 कॉस. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस 2 को t मानेंगे तो आएगा 2 कॉस x, और जिसको t माना होगा उसको दोबारा करेंगे तो कितना आएगा साइन माइनस साइन x. तो माइनस ब्रैकेट में माइनस साइन x. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं, फिर अगली लाइन में लिखेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 2/4 प्लस साइन. ओके, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस साइन x प्लस 4 साइन x कॉस x. अब यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा की. क्या कंडीशन होती है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. इसको इक्वेशन नंबर कौन दे देंगे, 4 दे दो. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रख दिया. तो क्या आ जाएगा, this implies that minus sin x plus 4 sin x cos x is equal to 0. यहाँ से आप क्या कर लो, आप यहाँ से निकाल लो. this implies that 4 sin x cos x is equal to sin x. sin x कैंसिल कर दो, we cancel sin x sin x. तो क्या बचेगा, we have 4 cos x is equal to 1. this implies that cos x is equal to 1/4. ये हमने इसकी निकाल ली. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, so that the maximum value of y is 1/8. या तो आप यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखा दो कि ये मैक्सिमा आ रहा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें cos x पता चल गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos x इन इक्वेशन 2. तो क्या था, y इज इक्वल टू, देख लो इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू नॉट 2 इन 3, सॉरी इन इक्वेशन 3, 2 में नहीं, इक्वेशन 3 में. तो y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x. तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर. इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, उधर करने पे कंफ्यूजन होगा. तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/16. तो y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8. एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8. दैट इज
y इज इक्वल टू 1/8, और यही आपको प्रूव करना था कि अगर ये मैक्सिमा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आंसर. So this is another type of question which is solved with the help of linear differential equation. Now we are going to discuss the next topic, and that is called the equation reducible to the linear form. And there is one important thing. This is also known as a Bernoulli's equation, or it is called a Leibniz linear equations also. So we are going to discuss the next topic, equations reducible in linear form. Okay, or we called it Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Okay, तो इसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, या इक्वेशन सॉल्वेबल इन लीनियर फॉर्म, रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म. तो ऐसी इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सेपरेट मेथड होता है, एंड वी आर गोइंग डिस्कस टू दैट मेथड. These equations are not exactly in the linear form, but we have to convert these equations into a linear form. So how to solve this equation? Let's start. The form of equations dy upon dx plus py is equal to q into y to the power n, where p and q are constants और दोनों हो सकते हैं, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, सो अगर कोई इक्वेशन ऐसी होती, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल इन अ linear form or Bernoulli's equation. How to solve these equations? Okay, we have to remove this y from right hand side. So this implies that we will divide the complete equation by y to the power n is not is equal to y to the power n into dy upon dx plus p y upon y to the power n is equal to q. This implies that इसको लिख लो y to the power minus n dy upon dx प्लस एक y से y कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 upon y की पावर n minus 1 is equal to q. थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं. This implies that y to the power minus n dy upon dx plus y to the power minus n plus 1 into p is equal to q. अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इधर में सॉल्व करना, लीनियर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना. डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना, फिर भी मैं बता रहा हूँ. तो क्या करना है, लेट y to the power minus n plus 1 is equal to z. This implies that minus n plus 1 एक पावर घटेगी तो बचेगा y की पावर minus 1 dy is equal to dz. So this implies that y to the power minus n dy is equal to dz upon 1 minus n. So substitute this here. This is your equation number 1. This is your equation number 2. So when you substitute this thing, what you will get? You will get, see, this term will replace by dz upon dx into 1 by 1 minus n इक्वल प्लस p, ये क्या है, ये z है, इज इक्वल टू q. अब कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड से,
राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब आप चेक करो, दिस इज योर लीनियर इक्वेशंस, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ ग्रीन पार्ट से। सी दिस टर्म इज कांस्टेंट, these are either कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट्स हैं, या एफ एक्स होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल इन अ लीनियर फॉर्म। So let's discuss few questions based on this one, and then we will move on the next topic. So let's simplify few questions. Question number 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है किसके लिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म। ओके, तो सॉल्व एक्स स्क्वायर dy प्लस y इन ब्रैकेट x प्लस y इंटू dx इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा डिस्कस करते हैं। वही पुरानी चीज जो हम बार बार लिखते हैं, गिवन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट dy upon dx इक्वल्स टू माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या क्या बचता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x और आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा वो देखते हैं। देखो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो सब कुछ तो सही है, बट इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बट इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। और देखो जस्ट अ मिनट, ये देखो y हमारे पास, ये y देखो, ये y देखो, ये लीनियर कर दो। ये अगर वाई स्क्वायर इधर ना होता तो लीनियर क्वेश्चन बन जाता, तो डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। This implies that y to the power minus 2 dy upon dx plus 1 upon x into y to the power minus 1 is equal to minus 1 upon x square, इक्वेशन नंबर 2। लेट यहाँ एज्यूम कर लेते हैं y to the power minus 1 is equal to z, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 1 y to the power minus 2 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy इज इक्वल टू dz। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y टू द पावर माइनस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकते, और y टू द पावर माइनस 2
dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा dz माइनस dz अपॉन dx. पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 देखो, तो इसकी इस पर्टिकुलर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आपका आ जाएगा माइनस, इसके प्लेस पे आ जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा. y इनवर्स के प्लेस पे z इज इक्वल टू माइनस 1/x². माइनस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इंटू जेड इज इक्वल टू 1/x². इक्वेशन नंबर 3. तो अब इसको आप चेक करो, ये आपकी लीनियर फॉर्म है कैसी. मैं रेड पेन से लिख के आपको बता रहा हूँ. ये लीनियर फॉर्म जो आया है, ये आया है डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू. आप देख लो P और Q. P के प्लेस पे क्या है, P के प्लेस पे आपका है P इज इक्वल टू माइनस 1/x एंड Q इज इक्वल टू आप कितना है 1/x². तो ये लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो गई Z और एक्सक्यूज मी Z और X में. ये हमारी लीनियर इक्वेशन P के में Y के फॉर्म में बची. लास्ट में सॉल्व करने के बाद Z को रिप्लेस कर देंगे किससे, Z को रिप्लेस कर देंगे Y से. तो सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो क्या करेंगे हम, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर माइनस 1/x dx. तो ये जाएगा ई की पावर माइनस बाहर निकालेंगे 1/x dx. तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लॉग एक्स और इज इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स इनवर्स, मतलब फाइनली बचेगा एक्स इनवर्स, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम निकालेंगे क्या, कंप्लीट सोल्यूशन. तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं. तो कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप नंबर 2 यही होता है. कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, z इंटू, क्योंकि इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/x. ओके, आप 1/x ये हटा दो ना, कंफ्यूज हो जाओगे. z इंटू 1/x इक्वल्स टू q था 1/x². इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x है इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. तो हमारे पास अब जो बचा, क्या बचा देख लो, माइनस में तो नहीं था वैल्यू, हमने माइनस लेके कैंसिल कर दिया था. ओके, और x क्या था, 1/x था. तो हमारे पास ये वैल्यू आई, क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई z इंटू 1/x इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3 dx प्लस कॉन्स्टेंट c. दिस इम्प्लाइज दैट z इंटू 1/x इज इक्वल टू x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2. वो रूल लगा दिया ना हमने, कहा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस n dx इज इक्वल क्या होता है, x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1. ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है सिंपल सा इंटीग्रेशन का. तो दिस गिव्स यू x की, z की वैल्यू क्या थी, z देखो क्या एज्यूम किया था हमने, z हमने एज्यूम किया था y इनवर्स को. तो y इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/2x². इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में है प्लस कॉन्स्टेंट c. दिस इम्प्लाइज दैट you have a 1/xy equals to minus 1/2x² plus constant c, and this is your final answer. ये फाइनल आंसर है. आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन reducible in linear form. So let's discuss few more questions. Okay, then we will bind our session.
Okay, so just check it. One more question. Come on the new page. Question number 2. Question number 2. Question number 2. What is the question number 2? Use the green ink for questions. Solve solve tan y dy upon dx plus tan x equals cos y cos स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सारा कुछ कॉस में ही, कॉस और साइन दैट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करने का कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो या तो y सेपरेट करो या तो x सेपरेट करो। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन तब ज़्यादा क्लियर होगा। गिवन tan y dy अपॉन dx प्लस tan x इक्वल टू cos y cos स्क्वायर x। देखो ये dy अपॉन dx लिखा हुआ है, हम तो इसका मतलब हमें ये cos y इधर नहीं चाहिए। इक्वेशन नंबर, पूरी इक्वेशन को cos y से डिवाइड कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन cos y tan y dy अपॉन dx प्लस tan x अपॉन cos y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा sec y इंटू tan y dy अपॉन dx प्लस sec y tan x। ध्यान रखना बेटा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करने की। एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर भी sec x है, तो हम sec x को क्या मान लेते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं z। क्या कर लेते हैं, z एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट इक्वेशन नंबर 2 देखो से, लेट z इज इक्वल टू sec y। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन, sec y का डिफरेंशिएशन, sec y tan y इंटू dy। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं dz अपॉन dx इज इक्वल टू sec y tan y dy अपॉन dz। अब अपनी इक्वेशन का ऊपर का फर्स्ट पार्ट देखो, जस्ट सी दिस वन। ये देखो ये किससे रिप्लेस है, डी जेड अपॉन डी एक्स से। मैं ये पार्ट तो ग्रीन पेन से ही लिखूंगा। तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स ये पूरा रिप्लेस हो गया। हमारे पास tan x अपनी जगह पर रहेगा, sec y को z एज्यूम किया था, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। ये था cos x tan x। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो क्या हो जाएगा, e की पावर log sec x। तो कितना आएगा, sec x आएगा। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट मी ऐड फ्यू पेज, वेट फॉर अ मिनट। तो वी हैव integrating factor, and integrating factor if is equal to sec x। तो complete solution complete solution complete solution solution is
z into integrating factor equals to q into integrating factor dx plus constant c. So z into integrating factor means sec x is equal to cos square x into sec x dx plus constant c. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, sec x था. तो z कितना माना था हमने, z हमने एज्यूम किया था किसे, sec y को. तो दिस implies that since z is equal to sec y, so this implies that sec y sec x is equal to, यहाँ पर cos और sec अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल है, बचेगा cos x dx plus constant c. So this implies that sec x sec y is equal to cos का इंटीग्रेशन sin x plus constant c. So this is the final answer for this question. Okay, so just cover this part and write it as your final answer. और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई से और कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है.